السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ماہم عباس اور میں ہوں مہرین فاطمہ۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا باغ جرامت جلسہ، مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کراچی والے پلٹ کر جھپٹنا بھول گئے ہیں۔ ہم نے تمہیں موقع دیا انسان کے بچے بن جاؤ، نہیں بنے۔ آج کراچی نے فیصلہ سنا دیا ہے، تمہاری ضمانتیں ضبط کریں گے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی، اور سوراب کو، اور صرف لالو کھیت میں نہیں، سوراب گوٹ میں بھی کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ میں ظلم اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، آئیں میرا ساتھ دیں، میں انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ این 127 میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنجاب پر کبھی شہباز اور کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون اپنا نظریہ چھوڑ سکتی ہے مگر میں اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جو دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں میں ان کا سر کاٹ دوں گا۔ ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہیں، وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں۔ آج ان کی سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو آئے، میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آئے میرے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم خان صاحب کو کہہ کے تھک گئے تھے کہ سیاست کرو، گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا۔ اپنا سیاسی مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے۔ آپ کو ایک بار پھر براہ راست لیے چلتے ہیں، خالد مقبول صدیقی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو نہیں، 21 جنوری کو فیصلہ آئے گا۔ آج فیصلے پہ مہر لگ گئی ہے۔ کراچی، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، سلامت رہے تا قیامت رہے۔ کراچی کی سلامتی کا مطلب، کراچی کی سلامتی کا مقصد پاکستان کی سلامتی ہے۔ کراچی کی سلامتی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ پاکستان کی خوشحالی کراچی کی خوشحالی کی بدولت ہے۔ کراچی اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، لہذا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ کراچی سے بھی محبت کرے۔ جو پاکستان کا خیر خواہ ہے وہ کراچی کا بھی غم خار ہوگا، اور ہم بھی کراچی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کراچی کی پرواہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی پرواہ کرتے ہیں، اور کراچی نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ پاکستان نے آج، کراچی نے پاکستان کے تمام غریبوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن پیدا کر دی ہے۔ آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، مزار قائد اعظم پر، قائد اعظم کے روبرو پاکستان، بانی پاکستان، بابا قوم کے روبرو ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے ایک وعدے، ایک ارادے، ایک نعرے کی تجدید کر سکے اور لاکھوں کے مجمع کی گواہی کے ساتھ کر سکے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے،
कराची, लो हम आ गए हैं, इस मुल्क के बेटे, इस मुल्क के वारिस, तुम्हारे निगहबान और पासबान। और हम आ गए हैं पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज्यादा मजबूत, मुतहरिक, मुस्तैद और तुम्हारे हुकूक की नई और ताज़ा जद्दोजहद के लिए। कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है और हम आज अपने वादे को, हम आज एक नया वादा और इरादा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। कराची हम आ गए हैं, हाँ हम आ गए हैं, लो हम आ गए हैं। जब हम आते हैं तो जज्बे और निखर जाते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों पे सर लेके आते हैं। जब हम आते हैं तो हाकिम वक्त बिगड़ जाते हैं, अब उनके बिगड़ने का वक्त भी खत्म हो गया है। आज कराची ने एक हद फासिल कायम कर दी है, वक्त आ गया है सब बंदी का, नए मार्के का, मोर्चे तामीर करने का, एक नई जंग करने का, एक सब बंदी करने का, जिसके एक तरफ 75 साल से पाकिस्तान पे काबिज गासिब जालिम हुक्मरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है। मैं मुबारकबाद देता हूं कराची की अवाम को, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हक परस्तों को, कि आज के जलसे ने पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुक्मरानी के एक नए और ताजा ख्वाब को ताबीर दी है। इंशाअल्लाह ताला अब हम देख पा रहे हैं वो मंजरनामा। हमने एक नई सबबंदी, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूम है, एक तरफ हाकिम है, दूसरी तरफ महकूम है, एक तरफ 2200-2300 खानदान है, दूसरी तरफ 22-23 करोड़ आवाम है। एक तरफ मरात याफ्ता तबका है, दूसरी तरफ एक तरफ जुल्म सितम तबका है। और इंशाअल्लाह ताला इस जंग में पाकिस्तान की आवाम की जीत होगी। हमारा अब मंजिल देख पा रहे हैं, सुनो आवाज दे रही है मंजिलें, राहें पुकार रही हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती है। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है, जो रात छाई थी रास्तों पर वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये यज़दा की आ रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है। वेलकम बैक। बात करने के लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने भाटी गेट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 8 फरवरी का दिन मुल्क की तकदीर बदलेगा। मजीद तफसीलात उसामा गौरी की इस रिपोर्ट में देखिए। भाटी गेट में मुस्लिम नून का वर्कर कन्वेंशन, कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। हमजा शहबाज ने मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया और कहा कि अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 8 फरवरी का दिन मुल्क की तकदीर बदलेगा। हम इलेक्शन जीत कर मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अल्लाह के हुजूर ये तवक्को है कि 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर दूर होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि माजी में हमारी क़यादत को इंतकाम का निशाना बनाया गया, मगर हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन जीत कर आवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, नौजवानों को लैपटॉप मिलेंगे और मईशत को फिर मुस्तहकम बनाएंगे। 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली के 100 यूनिट नहीं, इंशाल्लाह 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। आज के नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, फिक्र की बात नहीं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब शेर जीतेगा
मुस्लिम नून के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों का जोशो खरोश अरूज पर था, जो ढोल की थाप पर भंगड़े डालते और नारे लगाते रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के 28,000 से ज्यादा एहलकार दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। 7,832 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हिसास और 15,155 पोलिंग स्टेशंस को हिसास करार दे दिया गया। 27,475 पोलिंग स्टेशंस नॉर्मल हैं। इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 6 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2,32,667 एहलकार तैनात होंगे। एक हल्के में क्विक रिस्पांस फोर्स के 200 एहलकार मौजूद होंगे। जराये का कहना है कि फौज या रेंजर्स की तैनाती की सूरत में इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशंस के लिए 31,328 एहलकार, जबकि हिसास पोलिंग स्टेशंस के लिए 45,465 जवान दरकार होंगे। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए भरपूर सियासी जोर आजमाई जारी है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से जारी इंतखाबी मुहिम पर किस तरह अंदाज हो रही है, ये बता रहे हैं शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के 7 अजला में कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए भरपूर सियासी जोर आजमाई का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से अपने अपने हलकों में इलेक्शन ऑफिस खोलने के साथ साथ गलियों, मोहल्लों, चौराहों और खंबों पर सियासी जमातों के परचम, बैनर्स और पोस्टर लगाकर खूब तशहीर की जा रही है। दूसरी जानिब सियासी जमातों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल में घिरे अवाम को अपनी तरफ माइल करने में नाकाम नजर आती है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।